Hello students, today we will discuss the mathematical tool part 2। मैथमेटिकल टूल में हमने सीख लिया था पिछली क्लास में 10 ये फंक्शन देखा था हमने। ये एक्स एक्सिस था हमारा, ये वाई एक्सिस था और ये हमने ग्राफ प्लॉट किया था। द एंगल फ्रॉम द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज थीटा इज नोन एज स्लोप ऑफ द लाइन, दैट इज टेन थीटा हमने निकाला था। दैट इज़ अगर मैं कोई भी दो पॉइंट कंसीडर कर लूँ, दैट इज़ बी और ए ऑन द लाइन, देन दिस इज समथिंग एक्स टू वाई टू कोऑर्डिनेट, इसका होगा एक्स वन वाई वन, तो ये होगा वाई टू, ये होगा वाई वन, तो ये क्या होगा डेल्टा वाई, दैट इज वाई टू माइनस वाई वन, ये होगा एक्स वन, ये होगा हमारा x2, तो ये मेरे पास आ जाएगा डेल्टा x विच इज़ x2 माइनस x1 चेंज। ओके, ये थीटा दैट इज़ डेल्टा y ओवर डेल्टा x, ये पढ़ा था हमने स्लोप ऑफ अ लाइन। चलो आगे चलते हैं। tan थीटा क्या बताता है? स्लोप ऑफ अ लाइन। इफ द एंगल is less than 90 degree, then the slope is positive. If the angle is greater than 90 degree, m is negative. Okay, so now moved forward, something about curves। देखिए ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन है, कर्व ऐसे कर्व है, इसका हमने स्लोप देखना है। तो मैं क्या करूँगा, एट एनी पॉइंट ए मैं क्या ड्रा करूँगा, टेंजेंट। इफ आई ड्रॉ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, दिस इज द टेंजेंट, एंड फ्रॉम द एक्स एक्सिस, द एंगल इज थीटा वन। सो हेयर द स्लोप एट पॉइंट ए इज tan of theta 1. Okay, this is the slope. If I take another point B on the curve and again I draw the tangent at that point, this is the tangent, that is theta 2. So एट पॉइंट, ये ए की बात थी, एट पॉइंट बी tan of theta 2 will be the slope at point B. So we can easily say that theta 1 is less than theta 2. So tan theta 1 is less than tan theta 2, or tan theta 2 is greater than tan theta 1. It means this is the slope. My slope is increasing. Okay, that means slope is increasing. Or theta is again less than 90 degree, slope means positive. Okay, here slope is positive and theta 1 is less than theta 2, so theta 2 is greater than theta 1, so we can easily say that slope at point B is greater than slope at point A. So this is the curve with increasing slope. Okay, so next है हमारा नंबर 3। अगर ऐसा हो ग्राफ, शेप ऐसा हो, okay, this is y axis, this is x axis. At point A draw the tangent, this is the theta 1. At point B draw the tangent, theta 2. Here theta 2 is less than theta 1 or
θ1 is greater than θ2 and theta is again less than 90 degree, it means slope is positive, and tan of θ1 is greater than tan of θ2, or tan of θ2 is less than tan of θ1, it means slope is decreasing. Slope is decreasing. Slope is positive. It can be positive, it can be negative, it can be increasing, or it can be decreasing. Okay, so this is the regarding slope point of view. Next topic is our mathematical tool is, that is differentiation. Differentiation का शॉर्ट में इसको डेरिवेटिव भी बोल देते हैं, डेरिवेटिव। इसका जो सिंबल होता है दैट इज dy by dx। दिस इज मतलब वी कैन से दैट हाउ द क्वांटिटी ऑन y एक्सिस चेंजेस विद x एक्सिस। मीन्स डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये होता है, ये कैलकुलस का ही पार्ट होता है, तो इसको हम कहेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और इसको बोला जाता है चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, उसको बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको ये ऐसे भी बोला जाता है। दिस इज द सिंबल फॉर डिफरेंशिएशन। ओके, सो I can take two example to understand it clearly. Suppose there is a bucket. Here is one tap and the water is coming out from the tap, and you can see after some time, that is delta t, the bucket will full of water. Okay, that is, this height is delta h. So delta h बटा delta t is rate of change of height of water in bucket with respect to time. अगर मैं यही क्वांटिटी को, टाइम को पर्टिकुलर सेकंड में देखना होगा, जैसे 1 सेकंड 2 सेकंड के बाद कितनी हाइट होगी उसकी आफ्टर इन 1 सेकंड, तो स्मॉल हाइट होगी, उसको डी बोलेंगे, यहाँ पर टाइम इंटरवल डी टी होगा। That means dh बटा dt is rate of change of height of water level in the bucket with respect to time. Okay, इस अगर मैं एक बकेट और ले लूँ, यहाँ पे मैं ज़्यादा डायमीटर की वाटर टैप लगा दूँ, तो इसका जो रेट होगा दैट इज़ dh बटा dt विल बी मोर एज कम्पेयर टू दिस रेट। सो वी कैन अंडरस्टैंड, जैसे कि नॉलेज, के फॉर नॉलेज, कोई स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ते हैं बुक्स रेगुलरली, नोट्स को देखते हैं, उसका नॉलेज इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो उसका नॉलेज है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ नॉलेज दैट इज़ इंक्रीजिंग। कुछ बच्चे हैं वो पढ़ते नहीं, तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ नॉलेज क्या होगा, डिक्रीज होगा। कुछ बच्चे हैं मतलब कि आगे कुछ पढ़ते ही नहीं है, आफ्टर 10th वो बिजनेस करने लगते हैं, कोई पढ़ते नहीं है, तो उसका नॉलेज कांस्टेंट हो गया। इट मीन्स कांस्टेंट मीन्स डी के बटा डी टी, उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ नॉलेज है 0 होगा। कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस बताता हूँ, डिफरेंशिएशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस।
ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। ओके, सो मैं यहाँ पर 3 ग्राफ ड्रा कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दिस इज कर्व, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, दिस इज अगेन अ कर्व। तो अगर मैं इस पर 2 पॉइंट्स लूँ, ये क्या है, एक टेंजेंट ही है, इसका स्लोप क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ पर मैं लिखूंगा थीटा इज लेस देन 90 डिग्री और एम इज पॉजिटिव एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट मीन्स स्लोप एट दैट पॉइंट थीटा, यहाँ पर भी थीटा, ये कांस्टेंट है, दैट इज m1 इज इक्वल टू m2। दैट मीन्स slope means the dy by dx. It means dy by dx is constant. How can you say, sir, dy by dx is slope? I will clear it on this curve. Take any 2 point A or B and draw the tangent. This is theta 1, this is theta 2. Okay, if I say that भी आप क्या करो, ये इन दोनों पॉइंट्स को, जो पॉइंट B है वो A के काफ़ी नज़दीक आ गया, तो आप जब जूम करके इसको देखोगे तो ये लाइक ऐसे बनेगा। This is theta, this is very small change, this is very small change on x axis, so that's why here अगर आप टेंजेंट खींचोगे इस पर तो दोनों पॉइंट पर टेंजेंट ऑलमोस्ट क्या होगा, सेम होगा। सो वी कैन से tan थीटा इज dy by dx, so derivative is nothing but the slope of curve. So here the theta is also less than 90 degree. It means and theta tan theta 2 is greater than tan theta 1 here in this graph. So slope is increasing, tan theta means slope tangent at the point. And देखिए कोई भी कर्व का स्लोप कैसे निकलता है, कोई भी कर्व है एट दैट पॉइंट एक टेंजेंट ले लीजिए और हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल बनता है दैट इज tan ऑफ थीटा, दैट इज कॉल्ड द स्लोप एट दैट पॉइंट। ओके, सो यहाँ पर क्या है, स्लोप इज इंक्रीजिंग। इट मीन्स अगर स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो मेरा दैट इज dy बाई डी एक्स क्या होगा, स्लोप होगा। मैंने यहाँ पर बोला है tan थीटा, it means slope is increasing, dy by dx is also a positive or increasing. So अगर मैं इसका अगेन डेरिवेटिव लूँ एक और, तो दैट इज d2y बटा dx स्क्वायर इज इक्वल टू 0, क्योंकि कांस्टेंट का क्या होगा, डेरिवेटिव 0 होता है। तो इसका अगर अगेन डेरिवेटिव करें d2y बटा dx स्क्वायर इज इक्वल टू, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। देखिए जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है दैट इज जो लीनियर होता है dx, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है कोई भी कर्व का, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस मतलब स्लोप एट दैट पॉइंट, मतलब हाउ द क्वांटिटी ऑन वाई एक्सिस इज चेंजिंग विद एक्स, दैट्स द मीनिंग ऑफ dy बाई डी एक्स एट दैट पॉइंट। अगर अगेन डेरिवेटिव कर दिया जाए, इसका मतलब होता है हाउ द dy बाई डी एक्स इज व्हाट, स्लोप, हाउ द स्लोप इज चेंजिंग, हाउ the slope is changing,
that is it is increasing. Okay, so here double differentiation gives the significance how the slope is changing when we are moving along the x-axis. So next my third graph is, take any 2 point that is A and B and draw the tangent that is theta 1 and again that is theta 2, that is theta 1. यहाँ पर क्या है, theta 1. So theta 2 is less than theta 1 and theta is also less than 90, means slope is positive. So tan of theta 2 is less than tan of theta 1. It means slope at point B, that is m2, is less than m1. It means slope is decreasing. Slope is decreasing. So डिक्रीजिंग मतलब फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमें स्लोप मीन्स dy बाई डी एक्स, दैट इज नेगेटिव. अगर इसका अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे डी टू वाई बटा डी एक्स टू, अगेन इट इज ऑल्सो नेगेटिव. सो वी कैन ईजिली से दैट द डबल डिफ्रेंशिएशन इज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इज नेगेटिव. इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर सपोज डिस्प्लेसमेंट ले लेता, यहाँ पर टाइम ले लेता, इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट दैट इज डी एस बटा ओवर डी टी, मुझे क्या मिलता, यहाँ पर वेलोसिटी मिलता विच इज नेगेटिव. एंड अगेन इसका डिफरेंशिएशन करता तो मुझे क्या मिलता, दैट इज एक्सेलरेशन विच इज ऑल्सो नेगेटिव, दैट इज रिटार्डेशन होता यहाँ पर. अगर यहाँ पर मैं एस डिस्प्लेसमेंट और टाइम ग्राफ ले लूँ, इट मीन स्लोप इज इंक्रीजिंग, मतलब माई डी एस बटा डी टी इज पॉजिटिव, मीन्स द वेलोसिटी गिव्स द वेलोसिटी इज पॉजिटिव. एंड अगर इसका अगेन मैं डिफ्रेंशिएट करता डी टू एस ओवर डी टी स्क्वेयर, इट मीन्स एक्सेलरेशन यहाँ पर क्या होता, पॉजिटिव होता. इट मीन्स इट इज एक्सेलरेटेड मोशन. और यहाँ पर क्या होता है, या अगर मैं टाइम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ड्रा करता इसका ये ऐसे स्ट्रेट लाइन, इट मीन्स स्लोप दैट इज वेलोसिटी डी एस अपॉन डी टी इज कांस्टेंट, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट. इट मीन्स दिस इज यूनिफॉर्म. एंड इसका एक्सेलरेशन क्या होता कांस्टेंट का, डी टू एस बटा डी टी स्क्वायर, दैट इज जीरो होता. कांस्टेंट का मैंने पहले ही बोला था जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो होता है. ओके, जैसे यहाँ पर मैंने बोला था कांस्टेंट. सो डी बाई डी एक्स, इट दिस इज द सिंबल, दिस इज लाइक अ मशीन. यहाँ पर कांस्टेंट 1 टू एनी नंबर दैट इज जीरो, कांस्टेंट का हमेशा जीरो होता है. इट मीन्स दिस इज द यूनिफॉर्म मोशन, मतलब एक्सेलरेशन उसका जीरो है. सो नेक्स्ट मैं आपको कुछ फॉर्मूलेस बताता हूँ डिफरेंशिएशन के. सो मीन्स हमने देखा है डी वाई बाई डी एक्स एट एनी पॉइंट एक्स इज इक्वल टू x1, इट इज द slope of curve at that point, okay. If dy by dx of dy by dx is d2y bata dx square, it represents the double differentiation. And the significance is this means slope, this means how the slope along the x-axis is changing. The meaning of double differentiation is how the slope along the x-axis is changing. So first formula जो हम use करते हैं that is d by dx of k means constant x raised to power n. इसका क्या होता है, k
एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 और n आगे आ जाएगा n के x माइनस एक्स रेज टू पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू एक्स क्यूब होता अगर, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हम करते dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3, आगे आ जाता x की पावर 3 माइनस 1 दैट इज 3x स्क्वेयर। अगर मैं इसका अगेन डिफ्रेंशिएशन करूं d2y ओवर डी एक्स स्क्वेयर, तो इसका क्या आ जाएगा 3 इंटू 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 दैट इज 6x। ओके, सो आप फॉर्मूलास नोट कीजिए आगे। फर्स्ट ये है, सपोज एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, यहाँ पर फर्स्ट हो गया, इस पर बेस सेकंड होता y इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर आगे आ जाएगी माइनस 3/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा माइनस 3/2 एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 3 माइनस 2 दैट इज माइनस 3/2 एक्स रेज टू पावर माइनस 5/2 और माइनस 3/2 एक्स रेज टू पावर 5/2 dy बाई डी एक्स। ओके, सो नेक्स्ट इज 2x रेज टू पावर माइनस हाफ, y इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर माइनस हाफ। इसका हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर क्या हो जाएगी आगे आ जाएगी हाफ x माइनस 1/2 माइनस 1 दैट इज माइनस एक्स रेज टू पावर 2 माइनस 1 माइनस 2 दैट इज माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस 3/2 dy बाई डी एक्स। अगर आपको ऐसे मिलता फोर्थ y इज इक्वल टू 2x रेज टू पावर 3 प्लस x रेज टू पावर 5, इट मीन्स आपने क्या करना है dy बाई डी एक्स अगर प्लस माइनस हो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और एसोसिएटिव या डिस्ट्रीब्यूट प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको। dy बाई डी एक्स ऑफ 2x रेज टू पावर 3 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, इट मीन्स पावर आगे आ जाएगा 3 to the 6, ये 2.3 नहीं है, ये 2 into 3 है। एक्स रेज टू पावर 3 माइनस 1 प्लस 5 एक्स रेज टू पावर 5 माइनस 1 दैट इज 6x4 प्लस 5x रेज टू पावर 4। इट मीन्स अगर कोई फंक्शन ऐसे होगा y इज इक्वल टू f प्लस माइनस f डैश, तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा ये होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन f प्लस माइनस नेक्स्ट फंक्शन का भी हो जाएगा f डैश। ओके, तो नेक्स्ट पेज पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, तो आप इसको याद कीजिए, ये आपको आना ही चाहिए। फर्स्ट फार्मूला मैंने आपको बता दिया, सेकंड फार्मूला है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ एक्स दैट इज कॉस एक्स। थर्ड इज डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ एक्स दैट इज माइनस साइन एक्स। फोर्थ फार्मूला इज डी बाई डी एक्स ऑफ tan of x sin cos tan of x that is sec square x. Fifth formula is d by dx of cot of x that is minus cosec square x. Sixth formula is d by dx of sec x that is sec x tan x. Seventh formula is d by dx of cosec
x, that is minus cos x into cot x. And eighth formula is d by dx of natural log, that is ln of x, और d by dx of इसको लिख देते हैं log base e x, that is 1 by x. Ninth formula is d by dx of e raised to power x is e raised to power x. इसको बोलते हैं लॉगर, इसको लॉगरिथमिक नेचुरल लॉग फंक्शन, इसको बोला जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन. 10th is d by dx of a raised to power x, समथिंग कांस्टेंट रेज टू पावर x, ये बन जाएगा a रेज टू पावर x इंटू लॉग बेस e a. ओके, ये 10वां थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए. और 11th है d बाई डी एक्स ऑफ लॉग बेस a x, दैट इज 1 बाई x लॉग a बेस e, लॉग बेस a e. सो जैसे डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स का क्या है, देखिए पावर 1 है, 1 आगे आ जाएगा, एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1, दैट इज 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 0, दैट इज 1. ओके, सो ये 12 फॉर्मूला आप याद कीजिए. उसके बाद अब हम करते हैं हमारा थर्ड फोर्थ फिफ्थ न्यूमेरिकल, दैट इज y इज इक्वल टू, हमारे पास है साइन एक्स प्लस ई रेज टू पावर एक्स. तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स. साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और ई रेज टू पावर एक्स का ई रेज टू पावर एक्स, दैट इज आंसर. तो इसके बाद देखिए, ये कभी भी ख़त्म होने वाला टॉपिक नहीं है, ये तो अनंत है. डिफरेंशिएशन आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा कमांड आएगी आपकी, जो इसके क्वेश्चंस करोगे ना आप बुक में से. तो फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ, ये आपको 12 फार्मूलाज आपको आना चाहिए और कैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज़ और टूल को यूज़ करते हैं. y इज़ इक्वल टू ई रेज टू पावर 2x, ये आ गया. अब तो हमें e रेज टू पावर x का तो पता है क्या होता है. e रेज टू पावर अगर 2x आ गया यहाँ पर, तो हम क्या करने हैं, देखिए e रेज टू पावर x का क्या होगा, e रेज टू पावर x ही होगा. लीनियर पावर तक जाना है, यहाँ पर x और x के साथ ही होगा. डी वाई बाई डी एक्स इज, इसको पहले ऐसे ही लिख दो, e रेज टू पावर 2x, पहले तो इस पर लगाना है, फिर उसके बाद इसकी पावर पर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, दैट इज 2 होता है. 2 e रेज टू पावर 2x इज द आंसर. e रेज टू पावर 2x. जैसे आपके पास आ गया y इज इक्वल टू e रेज टू पावर साइन x. ओके, साइन x लॉग बेस e x इंटू टेन एक्स स्क्वेयर, ऐसा फंक्शन है. लो जी, इसका डिफरेंशिएशन करना है. तो इसको ध्यान से देखिए, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पहले मुझे ये इसका पता है, ई रेज टू पावर साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स इंटू लॉग ऑफ ई एक्स इंटू टेन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर. पहले तो इसका कर दिया, फिर आगे मैंने करना है, मुझे क्या दिख रहा है, साइन ऑफ दिस एंगल, तो इसका बन जाएगा साइन का कॉस ऑफ लॉग ऑफ ई एक्स इंटू टेन स्क्वेयर टेन एक्स स्क्वेयर. इसका कर दिया. अब मैंने जाना है लॉग का. लॉग दिस इज, यहाँ पर एक्स नहीं है, log of tan x square, that is into 1 upon tan square tan x square, जैसे log of e x का होता है 1 by x. ओके, सो आगे मुझे मिल रहा है tan x square, tan का होता है
स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ओके, सेक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आगे मुझे मिल रहा है एक्स स्क्वायर, एक्स का होगा 2x, सो दिस इज माय आंसर। सो घबराने वाली बात नहीं है, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आ जाएगा आपको। नेक्स्ट इसमें हम अब सीखते हैं प्लस माइनस होगा तो ये हो जाता है। तो इसके बाद है जो हमारा प्रोडक्ट रूल, जैसे कि मेरे पास कोई डी बाई डी एक्स ऑफ टू फंक्शन प्रोडक्ट में है, दैट इज यू वी। मैं यू वी या फर्स्ट सेकंड फंक्शन मान सकता हूँ। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का कर दीजिए, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल y इज इक्वल टू लॉग एक्स इंटू साइन एक्स, इसका करना है। दिस इज माई यू, दिस इज माई बी, प्रोडक्ट में है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, दैट इज लॉग ऑफ एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन साइन एक्स, प्लस साइन एक्स एज इट इज और लॉग ऑफ ई एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे। जहाँ पर कुछ नहीं होता ना बेस में, तो ये नेचुरल लॉग ही होता है। इट मीन्स लॉग एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 1/x। तो कभी भी जो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन होता है वो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पहले लिखा जाता है, जैसे साइन ऑफ 3π/2 होता है, ओके। तो इसको लिखते हैं हम, जो आर्गुमेंट होता है वो उसको पहले लिख देते हैं, लॉग ऑफ एक्स कॉस ऑफ एक्स प्लस 1/x साइन एक्स इज माई आंसर, ओके। तो y इज इक्वल टू, अगर इस पर और क्वेश्चन लेना है तो y इज इक्वल टू साइन एक्स पावर 5। इट मीन्स हमें क्या पता है, हमें साइन एक्स का पता है, दैट इज कॉस एक्स, पहले साइन पर लगाओ, दैट इज कॉस, इसको एज इट इज लिख दो x पावर 5। फिर x पर जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स बी पावर 5, दैट इज कॉस एक्स रेज टू पावर 5 इंटू 5x रेज टू पावर 4, दैट इज 5x रेज टू पावर 4 cos x रेज टू पावर 5 इज माई आंसर। तो इसके बाद हमारे पास होता है, जैसे क्वेश्चन है हमारा, जैसे है, हाँ, ये तो मैंने एक प्रोडक्ट रूल बता दिया। अब हमारे पास होता है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल ये होता है y इज इक्वल टू यू बाई वी की फॉर्म में। इसको देखिए, निचले का स्क्वायर, निचले वाला एज इट इज, पहले ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, बीच होगा माइनस, फिर ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो ये हो जाएगा dy/dx। तो देखिए इस पर बेस्ड एग्जांपल, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x अपॉन साइन x, दैट इज साइन x का साइन स्क्वायर x, इसका ये वाला एज इट इज dy/dx ऑफ ई रेज टू पावर x माइनस ऊपर वाला एज इट इज dy/dx ऑफ कॉस ऑफ x, दैट इज साइन x ई रेज टू पावर x का ई रेज टू पावर x कॉस x का माइनस साइन x होता है, कॉस x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x होता है,
यहाँ पर साइन एक्स होगा निचले वाले का, यहाँ पर कॉस एक्स आ जाएगा अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ई रेस टू पावर एक्स कॉमन निकालना है, निकाल लो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स will be the answer. So in my next video I will discuss the application part of the differentiation, means the maxima and minima, कब फंक्शन का किस पॉइंट पर हम मैक्सिमा निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, that will discussed in next lecture. Thank you.